پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، امریکہ اور ایران کو پھر مذاکرات کی میز پر بٹھا دیا۔ برگنسٹاک میں امریکی اور ایرانی وفد کے باضابطہ تکنیکی مذاکرات کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل۔ مذاکراتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق، دونوں وفود کی اپنی اپنی قیادت سے مشاورت۔ تکنیکی مذاکرات وقفے کے بعد دوبارہ شروع۔ امریکی وفد میں نائب صدر JD وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر شامل۔ باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی ایرانی وفد کا حصہ ہیں۔ مذاکرات میں پاکستان اور قطر کے وفود بطور ثالث شریک ہیں۔ اس سے قبل برگنسٹاک میں پاکستانی وفد کی ایرانی اور امریکی وفد سے ملاقات ہوئی۔ باضابطہ مذاکرات بارے مشاورت کی گئی۔ پاکستان کو ایران امریکہ مذاکرات میں سربراہی کی پیشکش کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی وفد کی ملاقات میں ایران امریکہ مذاکرات پر بات چیت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، محسن نقوی بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ ایرانی وزیر خارجہ اور فیلڈ مارشل ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ایرانی وفد نے مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکی وفد سے بھی ملاقات کی۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے تمام پہلوؤں پر شرائط طے کرنے کے لیے تکنیکی ماہرین پر مشتمل خصوصی ورکنگ گروپس تشکیل دے دیے گئے۔ تمام فریقین نیک نیتی کے ساتھ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر ٹرمپ کی مدبرانہ قیادت کے باعث مذاکرات ممکن ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی ان مذاکرات کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مذاکرات کے موقع پر گفتگو، کہا کہ موجودہ صورتحال عالمی امن کے لیے ایک اہم موقع ہے۔ تمام رہنما دنیا میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ مشترکہ کوششوں سے دنیا میں اتحاد، امن اور استحکام کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ امن عمل صرف آغاز ہے۔ خطے کے بہتر مستقبل کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رہیں گی اور آج ہونے والی پیش رفت نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کے امن و سلامتی کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن اولین ترجیح، پاکستان کے کردار کو دنیا نے سراہا۔ امریکی نائب صدر JD وینس کی گفتگو، کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مدبرانہ قیادت نہ ہوتی تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ فیلڈ مارشل نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک بہترین سفارتکار بھی ہیں۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران فیلڈ مارشل سے زیادہ کسی اور سے بات نہیں کی۔ میں اکثر مذاق کیا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں 2 ہی عام شخصیات ہیں، ایک میری بیوی اور دوسرے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ JD وینس کا کہنا تھا کہ امریکہ خطے میں امن کے فروغ کے لیے ایران سے بھی مثبت کردار کا خواہاں ہے۔ مستقبل کے لیے بہترین فیصلے کرنا چاہتا ہوں۔ لبنان کی صورتحال پر تشویش ہے۔ صدر ٹرمپ لبنان میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی نائب صدر JD وینس سے ملاقات۔ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بغرگیر ہوئے۔ JD وینس نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے جو کیا ہم اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کا کردار زبردست رہا، ہمیں پاکستان سے محبت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا کردار لائق تحسین ہے۔ ملاقات انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ JD وینس نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے خوشگوار انداز میں گفتگو بھی کی۔ ملاقات کے دوران دونوں جانب سے خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ملاقات برگنسٹاک میں امریکہ ایران تکنیکی سطح کے مذاکرات کے موقع پر ہوئی۔ امریکہ ایران مذاکرات کے دوران ٹرمپ کی ایران پر حملوں کی دھمکی، کہا کہ ایرانی حکام سے گفتگو کی، انہیں خبردار کیا کہ اگر آبنائے ہرمز بند کی گئی تو ان کے پاس ملک ہی نہیں بچے گا۔ ضرورت پڑنے پر امریکہ مستقبل میں آبنائے ہرمز کا کنٹرول بھی سنبھال کر وہاں سے گزرنے والے جہازوں پر ٹول بھی وصول کر سکتا ہے۔ امریکہ کے پاس مختلف آپشنز موجود ہیں۔ 60 روزہ مدت ختم ہونے کے بعد جو چاہوں وہ فیصلہ کر سکتا ہوں۔ لبنان کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے کہا کہ مایوسی ہے کہ اسرائیل حزب اللہ کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکا۔ اسرائیل کی ناکامی کے بعد وہ یہ ذمہ داری شام کو منتقل کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ ایران فوری طور پر لبنان میں اپنی پراکسیز کو مسائل پیدا کرنے سے روکے۔ اگر ایران نے ایسا نہیں کیا تو ہم ایران پر سخت حملے کریں گے، جس طرح ہم نے پچھلے ہفتے کیا تھا۔ غزہ میں حماس ابھی زیادہ مسائل پیدا نہیں کر رہی، اس لیے ہماری توجہ ایران پر مرکوز رہنی چاہیے۔ ٹرمپ نے امریکہ کو مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے نگہبان فرشتہ قرار دے دیا۔ ایران دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں، یو ٹرن ہم نے نہیں ٹرمپ نے لیا، آج بھی اپنے موقف پر قائم ہے۔
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब, कहा कि हम अपना यूरेनियम मौजूदगी का हक नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भी आखिरकार हमारे यूरेनियम मौजूदगी के हक को तस्लीम करना पड़ेगा। ट्रंप ने अपने साबिक़ा मौक़िफ़ के मुकाबले में 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया है। उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि वो हमारे हुकूक को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मफावती यादाश्त की तमाम शिकें हमारे मफाद में हैं। उम्मीद है ईरान अमरीका मुज़ाकरात के नताइज जल्द सामने आएंगे। अमरीका का सिर्फ एक नुक्ता ये है कि हमारे पास एटम बम नहीं होना चाहिए। शहीद रहबर आला ने बार बार कहा था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। अमेरिका ने कहा कि जौहरी मुआहदे पर दस्तखत करें, हमने दस्तखत कर दिए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुक़बर का कहना है तेहरान किसी भी कागजी मुआहदे को कबूल नहीं करेगा। ईरान अब महज बयानात या तहरीर यकीन दहानियों पर एतमाद करने को तैयार नहीं, अमली इक़दामात को ही बुनियादी शर्त समझते हैं। अगर अमेरिका ने अपने वादों की पासदारी ना की तो उसे नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी पॉलिसी साज माशी फ़ायदे और लागत के हिसाब की ज़ुबान बेहतर समझते हैं। अब मुज़ाकरात में कोई भी अमेरिका और ईरान की नेक नियति पर शक नहीं कर सकता। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की अल अरबिया टीवी से गुफ्तगू, कहा कि यकीन है कि अमेरिका और ईरान बिल आखिर एक हतमी मुआहदे तक पहुँच जाएंगे। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के असरात पूरी दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं और उम्मीद है कि खित्ते में कशीदगी में कमी आएगी। आइंदा 60 दिन के दौरान अपना हुर्मत से जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त में किसी किस्म की रुकावट मुतवक्के नहीं। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदीया और तुर्किया का ईरान अमेरिका मफाहमत का खैर मकदम। काहिरा इजलास का एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक चारों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मशरिक़ वस्ता समेत वसीतर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए मुसलसल मुशावरत और बाहमी हम-आहंगी को इंतहाई अहम करार दे दिया। मुश्तरका एलामी में कहा गया कि मुमकिन तनाज़ा इलाकाई सलामती, आलमी सप्लाई चेन्स और बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए संगीन खतरात का बायस बन सकता था। वज़राए ख़ारजा ने मफाहमत को मुमकिन बनाने में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फ़रीक़ों की कोशिशों को सराहा और मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों पर जोर दिया गया कि वो अपने वादों पर मुकम्मल और दयानतदारी से अमल दरामद यकीनी बनाएं। चारों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने इस तारीखी पेशरफ्त में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को खिराज तहसीन पेश किया, जबकि मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में कतर की बामनत को भी सराहा गया। एलामी में वाज़ेह किया गया कि खलीजी अरब रियासतों और शाम की अमन व इस्तेहकाम समेत खित्ते के तमाम ममालिक के खदशात को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। इजलास में गज़ा, मगरबी किनारे और मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस की इंसानी और सियासी सूरत हाल पर भी तवज्जो दी गई। कौमी असम्बली में बिजली बिलों पर हंगामा, ऐवान में शोर शराबा। सनाउल्लाह खान मस्ती खेल और ख्वाजा आसिफ के दरमियान भी तल्ख जुमलों का तबादला। सनाउल्लाह खान मस्ती खेल बिजली का बिल ऐवान में ले आए, बिल में लगाए गए टैक्सेस के नाम गिनवा दिए। वफाकी वजीर अवैस लगारी की मुदाखलत, सनाउल्लाह मस्ती खेल से बिल ले लिया। आजम रज़ी तारड़ बोले कि रूल्स के मुताबिक चलें। तय हुआ था कि 1.5 से 2 मिनट बोला जाएगा, फिर ये करें कि यहाँ पर बिस्तर भी मंगवा लेते हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि हम हलकों से वोट लेकर आए हैं, आप सेनेटर हैं, जिस पर स्पीकर ने कहा कि अभी भी बाहर जाकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि हमें मौका नहीं मिलता। अवैस लगारी की जानिब से बानी पीटीआई का नाम लेने पर अली मोहम्मद खान का एतराज। अवैस लगारी बोले कि उनको तकलीफ किस चीज़ की हो रही है। टिकटॉक्स तो बनाना बंद करें। हमाद असर और उमर अयूब तुम्हारे वजीर थे, तुम लोग 18,000 मेगावाट खरीदने जा रहे थे, हमने मुस्तकबिल का बोझ खत्म किया। पावर डिवीजन का माली बोझ कम होकर 700 अरब रुपए तक आ गया। सर्कुलर डेट में 780 अरब रुपए की कमी लाई गई। आदाद शुमार गलत साबित हो तो इस्तीफा देने को तैयार हों। कौमी असम्बली में इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तली खत्म करने की तहरीक मंजूर। रुकनीत बहाल तहरीक बैरिस्टर गौहर ने पेश की। कहा कि स्पीकर साहब बुध को बजट मंजूर होना है, 2 दिन रह गए हैं, उनकी मुअत्तली खत्म करें। कोरम की निशानदेही करना उनका हक है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि मेरा ओहदा आर्जी है, मैंने बतौर स्पीकर हर चीज़ का ख्याल रखना है। कोरम की वजह नहीं बल्कि डीजी मीडिया के साथ बदतमीजी पर उन्हें मुअत्तल किया गया। उन्होंने मेंबरान असम्बली से बदतमीजी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इकबाल आफरीदी को असम्बली के आदाब सिखाने चाहिए। हमें कोई गारंटी नहीं चाहिए, पार्लियामेंट लॉजिस को वीगो डाले से बचाएं। हम इक़्तिदार में हों तो पुलिस हमारे आगे और जब इक़्तिदार में ना हो तो पुलिस हमारे पीछे होती है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का आज होने वाला इजलास मुलतवी। 9 मुंतखब अराकीन कल हल्फ उठाएंगे, जिसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। बिलाल भुट्टो का अमजद अडुकेश को गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला बनाने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सदर पीपी गिलगित बल्तिस्तान अमजद अडुकेश से टेलीफोनिक रब्ता। हुकूमत साजी और अवामी हुकूक पर हिदायत दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग का गिलगित बल्तिस्तान में मुश्तरका हुकूमत बनाने का फैसला। मुजवज़ा फार्मूले के तहत वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से होगा। गवर्नर, अपोजिशन लीडर और डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का मनसब नून लीग को मिलेगा। तरक्याती अमल तेज करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला।
चिल्लास में पीपल्स पार्टी के GBA 16 दयामत 2 के उम्मीदवार अताउल्लाह के हामियों का इलेक्शन नताइज के खिलाफ 0 पॉइंट शाहराह कराक्रम पर धरना जारी। शाहराह कराक्रम ट्रैफिक के लिए बहाल न हो सकी। सैकड़ों गाड़ियों में हजारों मुसाफिर और सयाह फंस गए। गिलगित बल्तिस्तान का रावलपिंडी और मुल्क के दीगर हिस्सों से ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। कौमी असम्बली से मुतालबात ज़र की मंजूरी। एटमी तमनाई के लिए 22 अरब। नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए 14 करोड़ से ज़ायद का मुतालबा ज़र मंजूर। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए 2 अरब 35 करोड़। शोबा मवासलात के लिए 35 करोड़ से ज़ायद का मुतालबा ज़र मंजूर। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के लिए 25 अरब और शोबा दिफा के लिए 17 अरब से ज़ायद का मुतालबा ज़र मंजूर। आम शख्सियात के घरों को निशाना बनाना अफसोसनाक। बलोच रिवायात को पामाल किया जा रहा है। हम आइंदा नस्ल को क्या बताएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि अपोजिशन की तनकीद को रहनुमाई के तौर पर लिया। तंज़ और तानों के बावजूद खामोशी से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। बलोचिस्तान के 100% स्कूल खुल चुके हैं। स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद में 14% की कमी लाई गई। 14,000 से ज़्यादा असातिज़ा की शफाफ भर्ती की गई। सेहत के शोबे में 2,800 से ज़्यादा अमले की भर्ती अमल में लाई गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट इजलास। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद। वसाइल की तकसीम और तरक्याती तरजीहात पर सवालात उठा दिए। कहा कि सूबे के अवामी मसाइल हल न होना हमारी इज्तिमाई नाअहली है। कानून साजी के समरात भी अवाम तक नहीं पहुँच सके। कौमें इंसानों पर सरमायाकारी करके तरक्की करती हैं, इसलिए हुकूमत को मजबूत मईशत, मौसर निज़ाम इंसाफ और इंसानी तरक्की वसाइल पर खर्च करने चाहिए। अगर अवामी मसाइल बरकरार रहें तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों पर आयद होती है। अपोजिशन लीडर के मौक़िफ़ की तायद करते हुए कहा कि जारी मनसूबों को अधूरा छोड़कर नए मनसूबे शुरू करना नुकसानदेह है। अवाम तख्तियों और इफ्तिताई तकरीबात से मुतासर नहीं होते। बेबुनियाद इल्जाम तराशी PTI का वतीरा है। जब सबूत मांगो तो उनके पास कुछ नहीं होता। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि अपोजिशन ने 9 मई से अभी भी कुछ नहीं सीखा। PTI अरकान दबाव में है। मुंतखब नुमाइंदों को बाजी अलीमा को सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। मरियम नवाज ने पंजाब में 100 से ज़ायद तरक्याती मंसूबे शुरू किए। पंजाब में 30,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों की तामीर और बहाली की गई। इलेक्ट्रिक बसों से मुस्तफ़ीद होने वाले अवाम वज़ीर आला पंजाब को दुआएं दे रहे हैं। चिल्लास में क्लाउड बर्स्ट के बायस आने वाले शदीद सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। सैलाबी रैलों से मकानात, खेतों और दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें भी बह गईं। गोरमल में मरकजी शाहराह मुतादिद मकामात पर मुतासर होने के बाद आमदोरफ्त के लिए बंद। बड़ी आबादी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सड़क की बंदी से खाने पीने की अशिया की किल्लत। मकामी अफराद शदीद मुश्किलात का शिकार। अवाम ने हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि शाहराह को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। मुतासरीन की इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ। वफाकी दारुल इस्लामाबाद में भी बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर शहर में भी आंधी तूफान के बाद बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। बारिश का सिलसिला वक्फे से रात भर जारी रहेगा।